Okay, good afternoon students. This is your geography class and we are doing chapter number 5. From today we will start chapter number 5 and the name of the chapter number 5 of the book India People and Economy, which means these all chapters or all this book is related to Indian economy and the people's activities or the activities of the Indian origin peoples. Land resources and agriculture is our 5th chapter. Land resources and agricultural means how many ways we uses our land and what are the agricultural activities and what are the types of agricultural and how agriculture is the main occupation of the people of India or how India is a agricultural based economy. These all concepts we will study in this chapter. So let's start our topic. You must have observed that the land around you is put to different uses. We all know we use our land in many ways. We make our homes, we make our groves, we make roads and develop infrastructure on land. So there are many types in which we use our land. Some land is occupied by rivers, some may have trees and on some parts roads and buildings have been built. तो हमने देखा कि किस किस तरह से लैंड को हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेज मीन्स डिफरेंट लैंड इज सूटेबल फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. some lands are useful for agriculture, some lands are useful for making roads, etc. Human beings thus use land as a resource for production as well as residence and recreation. So we all use our land according to the productivity of land or according to our needs. मीन्स हम घर बनाने के लिए, हम रहने के लिए, हम अपने मनोरंजन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लैंड को यूज़ कर सकते हैं. Thus the building of your school, roads on which you travel, parks in which you play, fields in which crops are grown and the pastures where animals graze represent different uses to which land is put. तो आपने देखा कि कहीं पर पशु चराए जाते हैं, कहीं पर अपने स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं पर रोड बनाए जाते हैं, कहीं पर फसलें उगाई जाती हैं. तो अलग अलग तरह से हम अपनी ज़मीन को यूज़ करते हैं. So this was the first paragraph of our 5th chapter, land resources and agriculture. Now came to the second paragraph. The heading of the second paragraph is land use categories. Land use categories means in how many ways or in what ways we use our land. Land use records are maintained by Land Revenue Department. First important point means Land Revenue Department records all land use documents. The land use categories add up to reporting area. Means the land which used by us is called reporting area, which is somewhat different from the geographical area. Geographical area वो पूरी धरती है, ठीक है, जो हमारे देश के अंदर आती है. लेकिन लैंड यूज़ कैटेगरीज मीन्स वो रिपोर्टिंग एरिया जहाँ पर हम लैंड से संबंधित कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं. विच द सर्व, तो आप देखो दो कंसेप्ट हो गए, एक तो हो गया रिपोर्टिंग एरिया, एक हो गया ज्योग्राफिकल एरिया. ज्योग्राफिकल एरिया सारा का सारा ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें प्लेन्स भी, आपके माउंटेन्स भी, आपके डेजर्ट्स भी, आपके प्लेट्यूज भी, आपके आइलैंड्स भी, आपके कोस्टल रीजन्स भी सभी आते हैं. लेकिन रिपोर्टिंग एरिया एक अलग थिंग है. The Survey of India is responsible for measuring geographical area of administrative units in India. So the Survey of India identify the administrative boundaries of each unit of India. Means बेरी तहसील का कितना दायरा होगा, रोहतक ज़िले का कितना दायरा होगा, बिहार राज्य का कितना एरिया होगा, ये सभी हमारा सर्वे ऑफ इंडिया से होता है. Have you ever used a map prepared by Survey of India? The difference between the two concepts means geographical area or reporting area are that while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records. तो दोनों कंसेप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक कंसेप्ट तो उस बात से रिलेटेड है
जो हमारे लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुमान पर आधारित है कि हमने पहले लैंड रिवेन्यू के रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या क्या बदलाव किए हैं, फॉर्मर चेंजेस की जो पहले बदलाव हो चुके हैं लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से या लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से। द लेटर डज नॉट चेंज एंड स्टेज फिक्स एज पर सर्वे ऑफ इंडिया मेजरमेंट्स। लेटर मीन्स जो दूसरा है उसके बाद का जो एरिया है हमारा वो कभी चेंज नहीं हुआ है, वो सर्वे ऑफ इंडिया से केवल उसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। यू मे बी फेमिलियर विद लैंड यूज कैटेगरीज एज दे आर, हमने 10th में भी लैंड यूज कैटेगरीज आपने पढ़ी होगी, हमने पढ़ी होंगी, ये कह रहा है, ठीक है। सो इन दिस पैराग्राफ व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल एरिया? Geographical area is all the entire territory of any particular country, and the second thing was that which is related to the reporting area. Reporting area is identified by our revenue department where our land use categories are reported, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट हो गए, ठीक है। पहले वाला कंसेप्ट में बदलाव हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग, पहले बदलाव हो चुके हैं, दूसरा हमने फिक्स कर रखा कि अब ये एरिया इतना ये रहेगा। द लैंड यूज कैटेगरीज, सो देयर आर मैनी वेरियस टाइप्स। द लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। फॉरेस्ट मीन्स ज़मीनें का किस किस तरह से, जैसे वनों का भाग कितना होगा देश में, ठीक है, बोया गया क्षेत्र कितना होगा, ठीक है, जिस पर फसल नहीं हो सकती वो कितना होगा, जिस पर 1 साल से फसल नहीं बोई जा रही वो कितना होगा, जिस पर 5 साल या उससे ज़्यादा से उसको क्या कहेंगे, ये सब हमने देखना है। द लैंड यूज कैटेगरीज आर मेंटेन्ड एज इन द लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, इट इज़ important to note that area under actual forest cover is different from area classified as forest। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में वनों का एरिया 20% हो सकता है लेकिन क्लासिफाइड एरिया 30 भी हो सकता है, ठीक है। वास्तविक और क्लासिफाइड डेफिनेशन में डिफरेंस है। द लेटर इज़ द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। तो जो आपका क्लासिफाइड एरिया है, बाद का एरिया है जो, वो कौन सा है, जो हमारे देश की सरकार ने जिसकी पहचान की है कि इतना एरिया वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जो फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए हमारा सूटेबल है। द लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन। तो बात वही आ गई फिर से कि लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स जैसे ऊपर उस बात से संबंधित थे तो नीचे भी इसी बात से संबंधित है कि जो दूसरी डेफिनेशन है कि कितने एरिया को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। Thus, there may be an increase in the category without any increase in the actual forest cover। तो देखो हमारे देश का लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड्स जब सर्वे करता है तो वो कह सकता है हमारे देश का 40% भूभाग ऐसा है जो वनों से ढका जा सकता है या जहाँ पर वन आसानी से फैल सकते हैं, उग सकते हैं, उनकी ग्रो हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में हमारे देश में 20-25% वनों से ढका हुआ भाग भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल और क्लासिफाइड या आइडेंटिफाइड एरिया में डिफरेंस है, कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2, वेरेन एंड वेस्टलैंड्स। वेस्टलैंड्स मीन्स वेयर नन एक्टिविटीज कैन डन। The land which may be classified as a wasteland such as barren hilly terrains, desert lands, ravines, etc. normally cannot be brought under cultivation with the available technology। तो जिस वेस्टलैंड्स वो लैंड्स होंगे जहाँ पर आज की तकनीक के हिसाब से हम खेती करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, मीन्स हम खेती नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हों वहाँ पर भी खेती होनी पॉसिबल हो जाए, ठीक है। नाउ द नंबर 3, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मीन्स जहाँ पर हम खेती नहीं करते बाकी और कोई काम करते हैं। लैंड अंडर सेटलमेंट्स रूरल एंड अर्बन। तो एक तो जहाँ पर गांव या शहर बसे हुए हैं वहाँ पर खेती नहीं होती, जहाँ बसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, रोड्स, कैनाल्स एटसेट्रा, इंडस्ट्रीज, शॉप्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। एन एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज वुड लीड टू एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ द लैंड यूजेज। सो वेयर वी डू नॉट मेक agricultural activities or we
we involved in the non-agricultural activities such as the secondary or tertiary sector activities. The area is called as the non-agricultural uses area. ठीक है, और आप इसको कह सकते हो कि जितनी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी उतना ही आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज एरिया बढ़ता चला जाएगा। आसान है, आप समझ गए होंगे। लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, तो जो परमानेंट पेस्चर्स हैं और ग्रेजिंग लैंड्स हैं, घास के मैदान हैं, वो मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज़ ओन्ड बाई विलेजेस। आपको पता है बड़े बड़े घास के मैदान तो गांव में ही पाए जाते हैं। शहरों में तो या तो पार्क होते हैं आपके, या फिर आपके शहर बसे हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े दायरे में। उसके अलावा आसपास में होते हैं तो ज़मीन लगा लो या इंडस्ट्री लगा लो या उस पर खेती लगा लो, ठीक है। लेकिन गाँव में, हर एक गाँव में बहुत सारी ज़मीन होती है जो ऐसे ही, जिसको पंचायती ज़मीन बोलते हैं। सो और द विच area is owned by panchayats or the government. Only a small proportion of this land is privately owned. हाँ, कुछ घास के मैदान ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी प्राइवेट इंसान से बिलोंग करते हैं या इंडिविजुअली किसी का राइट है उनके ऊपर। द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स या ग्लोबल कॉमन्स वो हैं जो पूरी दुनिया के हैं। तो ऐसे ही जो हमारे देश की सरकार के हैं वो हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल विलेज पंचायत लैंड, ठीक है। तो गाँव की पंचायती ज़मीन, you all got it. Now the fifth one is area under miscellaneous tree crops and groves. तो जो आपकी पेड़ों वाली फसलें हैं, ठीक है, और जो ग्रूव्स हैं उनको, बगीचे हैं उनको हम बोल सकते हैं, वन हैं उनको हम बोल सकते हैं कि जो मिसलेनियस में आते हैं या ट्री क्रॉप्स में आते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था नेट सोन एरिया वो है जहाँ पर हमारी फसलें बोई गई हैं, बट ट्री क्रॉप्स हमारी इस ऐसी सिंपल सीड्स में नहीं आती, फसलों में नहीं आती। सो द लैंड अंडर ऑर्चार्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो बड़े बड़े बगीचे या फलों के बागान इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। मच ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन्ड। और आपको पता ही है बागान या बगीचे होते हैं, चाहे पहाड़ी इलाकों में हो या चाहे कहीं पर भी हो, जनरली वो किसी प्राइवेट इंसान के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे आसपास में अमरूद के जो बाग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड। एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो, लेफ्ट फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 years is included in this category. It can be brought under cultivation after improving its straw reclamation practices. तो ऐसी ज़मीन जिस पर 5 साल या उससे अधिक समय से हमने कभी खेती नहीं की है तो हम उसको कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड कहेंगे। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस लैंड के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सके और आगे आने वाले फ्यूचर में वहाँ पर खेती होना पॉसिबल हो सके। Now the seventh one is current fallow. Cultivable wasteland is the left fallow, ठीक है, and the current fallow is, this is the land which is left fallow. Current means for 1 or less than 1 agricultural year. तो ऐसी ज़मीन जिसको हमने कल्टीवेट नहीं किया है, फसल नहीं बोई है 1 साल से या 1 साल से कम टाइम से। फॉलोइंग इज ए कल्ट्रेबल प्रैक्टिस अडोप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, जो बच्चे गांव से होंगे उनको पता भी होगा। आपने 2-3 बार गेहूं की फसल उठा ली है, धान की उठा ली है, तो एक बार घर वाले बोलते हैं कि इस बार हम उसको ऐसे ही बांगरू छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं ताकि वो उसका उपजाऊपन बढ़ सके कुछ। तो ऐसा ज़मीन को थोड़ा रेस्ट देने के लिए या फिर उसकी फर्टिलिटी को जो कम हो गई है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाउ द 8th वन इज़ fallow other than current fallow. This is also a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years. तो fallow other than current fallow, तो देखो कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड तो था जो 5 साल से अधिक समय से या 5 साल से उस पर हमने कुछ बोया नहीं है। करंट फैलो था जिसमें 1 साल या उससे कम टाइम से। सो द फैलो अदर देन करंट फैलो इज रिलेटेड टू मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। तो जिस ज़मीन पर हमने 1 साल से अधिक टाइम से और 5 साल से कम टाइम के बीच में हमने फसल नहीं बोई है, हम उसको कहेंगे फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है।
इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज कल्ट्रेबल वेस्टलैंड। यदि टाइम 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको उसकी कैटेगरी बदल देंगे और उसको कल्ट्रेबल वेस्टलैंड में कर देंगे। नाउ द लास्ट वन इज नेट सोन एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन, क्रॉप्स नोट द ट्री क्रॉप्स, जहाँ पर फसलें बोई गई हैं उसको हम कहेंगे। और एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, जिस लैंड पर हमने फसलें बोई हैं काटी हैं उसको हम कुल बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया कहेंगे। ये था आज का आपका टॉपिक, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा शायद, इतना मज़ेदार है, बाकी आप कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। और भाई लाइव क्लासेस देखो मैं ले रहा हूँ, और अब उसमें वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम? जो आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम थी या फिर साफ न दिखने की प्रॉब्लम थी, हमने वो सब सिस्टम अच्छे कर लिए हैं। तो मैं देखो यहाँ भी बना देता हूँ, मैं वहाँ भी ले रहा हूँ। देखो वहाँ लेता हूँ तो एक आध बार यहाँ नहीं डाल पाता, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप लाइव भी आ सकते हो और यूट्यूब पे भी ले सकते हो। हाँ वो बात अलग है, जो बच्चे लाइव नहीं आ सकते, मोबाइल की प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप प्रॉब्लम है या फिर कोई और फैमिली प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप यहाँ से यूट्यूब से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। बट जो ऑनलाइन आ सकते हैं वो अपने साथ साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बार कल आप ज्वाइन करके देखना, वो सब कुछ साफ मिलेगा आपको, आवाज़ भी और ये सारी चीज़ें। तो आपकी मर्ज़ी वैसे।